Hi, our today's topics for discussion are Preamble, Part 2, Part 3, Part 4, Part 4A of the Constitution of India. The Constitution of India came into force on 26th of January 1950. It contains 395 articles divided into 25 parts. This is very important. The first thing is also very important, and it has 12 schedules. अभी हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950. उसमें 395 आर्टिकल्स हैं और ये आर्टिकल्स 25 पार्ट्स में डिवाइड किए. इट हैज़ 12 शेड्यूल्स. शेड्यूल्स की अगर बात करें तो इसमें क्या डिटेल्स है, कौन कौन से डिटेल्स है? लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज, सैलरीज ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, the oaths of office of elected representatives, official language, इन चीज़ों के बारे में जानकारी दी है. वो हम जब इस पे सेशन लेंगे तो हम विस्तार में इससे बात करेंगे इस पर. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेशंस पॉलिटिकल सिस्टम. किस टाइप की गवर्नमेंट होगी, किस टाइप की सिस्टम होगी, ये पूरा इसमें दिया हुआ है. द राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड अदर पर्सन्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट. द फाउंडेशन ऑफ सर्टन एसेंशियल वैल्यूज, ये सब बातें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, जो कि हम अभी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप. द एम्फोसिस, कॉन्स्टिट्यूशन की जहाँ तक बात आती है तो द एम्फोसिस इज लेड ऑन वैल्यूज ऑफ लिबर्टी एंड जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, लिबर्टी एंड जस्टिस, ऑन ट्रीटिंग ऑल सिटीजन्स एज इक्वल बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज. ये हम देखेंगे, वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन कम. The very important point is the constitution derives its authority from the people of the country. कहाँ से authority मिली है constitution को? People of the country. Very important. The legislative, administrative and judicial authorities derive their powers directly or indirectly from the Indian constitution. Preamble. Preamble प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसको जानना हमें बहुत महत्वपूर्ण है. इसमें क्या है प्रियम्बल में? आइडियोलॉजीज एंड एम्स ऑफ न्यू इंडिया. इट रिफ्लेक्ट्स द विजन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज. एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आर गिवन इन प्रियम्बल. इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी sovereign, socialist, secular, democratic and republic. Very important it is. The word sovereign implies that republic is sovereign, independent. इसके बारे में प्रियम्बल के लिए एक very important question. Preamble was amended in the year 1976. By way of 42nd Amendment, which added the words socialist, secular and integrity. Socialist, secular and integrity. 3 words were added. The preamble is taken from American Constitution. ये preamble के लिए ये बहुत ज़रूरी है. Preamble में क्या है? Ideologies and aims of new India. Then the preamble gives idea of aims and aspirations. Then it says that another thing is that the preamble, the fundamental rights and the directive principles are the soul of the constitution. Soul of the constitution किसको कहा है? preamble, fundamental rights and the directive principles. Then amendment 76 में 42nd amendment, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड्स वेर एडेड. सिटीजनशिप की बात करें तो
Part 2 of the Constitution deals with the provisions of citizenship. Citizenship at the commencement of the Constitution. जब शुरुआत में Constitution के शुरुआत में Article 5 बताता है कि who was born in the territory of India, whose parents was born, either of whose parents was born in the territory of India, who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be a citizen of India. ये कब की बात है? Every person who has his domicile in the territory of India immediately at the commencement of the Constitution. उस वक्त की बात है. Thereafter 6-7 जो आर्टिकल्स है वो it means it only describes, it only gives the meaning of Article 5 means all Indian citizens who were born and raised in the country were given the Indian citizenship. Who was born in the territory of India यहाँ पे है. So all Indian citizens who were born and raised in the country were given the Indian citizenship. Similarly, those persons who were not born in India but one of their parents was born in the India were given citizenship. And any person lived in India for more than 5 years immediately prior to the commencement of the Constitution was also entitled for citizenship. 6 और 7 की बात करें तो it deals with the citizenship right who migrated from Pakistan to India and citizenship rights to selected migrants to Pakistan. Continuance as citizenship and other things. Very important now is fundamental rights. We are now moving towards fundamental rights. There are 6 types of fundamental rights. 6 फंडामेंटल राइट्स है. उसमें पहला है राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार. ये बताता है कि सभी को अधिकार है समानता का. लॉ के सामने सभी समान है. देन राइट टू फ्रीडम में आज़ादी का अधिकार है. हम जो चाहे वो कर सकते हैं विद इन रीजनेबल बाय फॉलोइंग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. जो भी है ज़रूरी है जितना ज़रूरी है बट सभी को अपना अपना राइट टू फ्रीडम इज गिवन. सो दैट इज देयर. देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है. कल्चरल एजुकेशनल राइट है और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है. ये सभी हम अभी देखेंगे बारी बारी से. राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14-18 में है. और आर्टिकल 14 to 18 इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. आर्टिकल 14 is very important and others articles are also equally important. What I mean to say that articles 14 to 18 are very important as they give idea of right to equality. Now equality before law. Equality before law के पहले एक देख लेते हैं कि राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या है. राइट टू इक्वालिटी में है नंबर 1 it ensures, article 14 ensures the right to equality. Everyone has equal ownership irrespective of their religion, gender, color, caste और place of birth. ये 14 का है. 15 के बारे में है. 15 bars the discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place. 16 provides for equality of opportunity in the matter of public employment. 17 and deals with the abolition of 17 and 18 the deal with titles and untouchability as untouchability and titles are abolished. तो अभी हम चलते हैं राइट टू 14 आर्टिकल 14 पे. इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. देन वी आर टॉकिंग ऑफ आर्टिकल 14. तो इसमें क्या है, दो कंसेप्ट है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. इक्वालिटी बिफोर द लॉ क्या है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ है absence of any special privilege or treatment in favor of any individual, which means every person irrespective of his position or rank is subject to the law of land and just jurisdiction of the ordinary court. इसका मतलब यह है कि उसको जो कानून है वो समान है, समान कानून रहेगा, उसको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी. ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ.
और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन, लॉ प्रोटेक्ट करेगा इक्वली, सभी को एक समान प्रोटेक्ट करेगा। इसका मतलब है विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री शैल गेट इक्वल प्रोटेक्शन, एवरी पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री शैल गेट इक्वल प्रोटेक्शन। दे आर एंटाइटल्ड टू एंजॉय देयर राइट्स एंड विदाउट प्रिविलेजेस विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये इसका मतलब है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। प्रोहिबिशन आर्टिकल 15 अभी हमने देखा, 14 देख लिया, 15 हम देखेंगे। 15 में यही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बार्स द गवर्नमेंट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन अकाउंट ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम। आर्टिकल 15 कहता है कि प्रोहिबिशन है, आपको कोई भी चीज़ जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ऑल आर इक्वल, वही जो है वो बेस है इसी बात का। 15(2) कहता है कि नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विथ रिगार्ड टू एंट्री टू शॉप्स। वो कहीं भी जा सकता है, शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, ये सब के लिए खुला है। इसी तरह से यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बर्थिंग गार्ड्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट्स मेंटेन होली और पार्शियली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। जो बातें जो पब्लिक के लिए बनाई गई है वो सभी पब्लिक के लिए ओपन रहेगी। बहुत अच्छा आर्टिकल है। आर्टिकल 15 इज वेरी गुड आर्टिकल, 15(1) एंड 15(2). नाउ वी आर मूविंग टू, सो फॉर एज एक्सेप्शंस तो है इसके। 15 के एक्सेप्शंस क्या है? 15 में स्टेट कैन मेक लॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ, फॉर मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वेलफेयर ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन। अगर कोई अच्छी स्कीम है ऐसी है जिससे उनका अच्छा होता है। इसी तरह से सोशली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, एडवांस, इनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस स्टेट कर सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक। अभी सरकारी नौकरी है, सरकारी जॉब करना है किसी को, तो एक जो क्राइटेरिया फिक्स है वो सभी के लिए एक ही क्राइटेरिया रहेगा, इसका ये मतलब है। आर्टिकल 16, स्टेट गारंटीज टू ऑल सिटीजन्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिस अंडर द स्टेट। ये बात है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी का ये है, राइट है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 के हिसाब से यस, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है और इस प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड। सिमिलरली एबोलिशन ऑफ टाइटल है, टाइटल अभी निकाल दिए है, जो राजा महाराजा जो पहले जो टाइटल थे वो निकाल दिए। ओनली गवर्नमेंट कैन गिव, जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से है, गवर्नमेंट एज पर लॉ। फ्रीडम्स की बात करें तो ये दूसरा राइट हो गया। पहला राइट देखा आपने, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 to 18। अभी है फ्रीडम की हम बात करें तो आर्टिकल 19 इज देयर। 19 आर्टिकल में 6 टाइप्स के फ्रीडम्स दिए हैं। ये फ्रीडम्स है बात करने का अधिकार, अपनी बात व्यक्त करने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। आप एक जमा हो सकते हो, सभा हो सकती है, मीटिंग हो सकती है, मीटिंग ले सकते हैं, पीसेबली लेना है आपको। एंड देन एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। कुछ इश्यूज जो है वर्कर्स के, कुछ इश्यूज है जो सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए वर्कर्स के वेलफेयर के लिए यूनियंस बनती है। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अलावा कहीं रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं और अपना बिजनेस कहीं भी हम कैरी कर सकते हैं। ये है फ्रीडम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आ सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफमेशन और इंसाइटमेंट होना। इन चीज़ों के बारे में ये रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल आ सकते हैं, बट अदरवाइज वी ऑल कैन हैव दिस टाइप ऑफ फ्रीडम्स। आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी का पार्ट है फ्रीडम्स का। आर्टिकल 21 कॉन्फर्स ऑन एवरी पर्सन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, किस तरह की? डिग्निटी के साथ। यस, मीनिंगफुल लाइफ हैज टू बी मीनिंगफुल एंड आर्टिकल 21 गारंटीज राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी आर कमिंग टू राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन 21A है आर्टिकल, and according to this article, state should provide free and compulsory education to children of the age of 6 to 14 years. 6 to 14 years के बच्चों को स्टेट फ्री एजुकेशन के लिए
स्टेट हैज़ टू गिव, स्टेट को देना है. 21A प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, आर्टिकल 22. ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है. इसमें यह है कि एवरी अरेस्टेड पर्सन डिटेन इन द कस्टडी शैल बी इन्फॉर्म ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट. अगर किसी को अरेस्ट किया है तो उसको ग्राउंड्स बताना ज़रूरी है, किस ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया है. उसके बाद उसको लीगल प्रैक्टिशनर अगर चाहिए तो ही कैन नॉट बी डिनाइड दैट राइट. वो लीगल प्रैक्टिशनर को एंगेज कर सकता है. और तीसरी बात है कि इस पर्सन को विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने. इसमें ट्रैवल टाइम जो है वो अलग से होगा, ट्रैवल टाइम छोड़कर. सो दिस इज हाउ दिस प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस इज देयर. ये 22 है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 में नोबडी कैन बी एक्सप्लॉयटेड. सो दिस इज द आर्टिकल और वो पनिशेबल है. एंड आर्टिकल 24 क्या करता है? 24 इज प्रोवाइडिंग दैट इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years to work, very important, to any factory, mine, engaged in any other hazardous job or employment. 14 years के नीचे no job to anyone. Right to freedom of religion, yes, religion का religious जो भी है प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने फेथ, बिलीफ, फ्री प्रोफेशन, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, मैनेज रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं. दीज आर द थिंग्स विच आर कमिंग विथ रिगार्ड टू रिलीजन. रिलीजियस फेथ जो भी है, जिसकी फेथ है वो ही कैन फॉलो दैट. दिस इज अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजन. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जिसको हम कहते हैं कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या कोई है तो दे कैन फॉर्म द एजुकेशनल few people, if people come together and they can form the educational institution for the benefit of their society. This is how 29 aims to protect the interest of the minority group. The different section of the society have a right to conserve their culture, language and script. And 30 confers right to minorities to form and manage their own educational institution. अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. ये अगर 5 राइट्स हमने देख लिए, फंडामेंटल राइट्स, और इससे जो भी एसोसिएटेड राइट्स थे वो सभी हमने देख लिए. ये सभी हमारे मूलभूत अधिकार हैं, मूलभूत चीज़ें हैं जो कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है. अगर यहीं पे कुछ वायलेट होते हैं ये लॉज, अगर ये डिप्राइव होता है कोई आदमी अपने अधिकार से, तो देन ही कैन गो फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. अगर राइट्स अगर एनफोर्स नहीं कर पाए तो 32 guarantees the enforcement of fundamental rights. ठीक है. नाउ किस टाइप के रिट्स है ये? 5 टाइप्स के रिट्स है. रिट पिटिशंस फाइल कर सकते हैं. हेबियस कॉर्पस अंडर आर्टिकल 32 and 226 a person can approach either high court or supreme court. 32 में सुप्रीम कोर्ट, 226 में हाई कोर्ट. पर्सन कैन अप्रोच फॉर द पर्पज ऑफ रेमेडी जो भी है, क्योंकि इसको क्या कहा है ये पिटिशन को, इट इज़ एन इफेक्टिव बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम एंड लिबर्टी. इसमें पर्सनल फ्रीडम जो है वो आपका वापस मिल सकता है. अगर हम एक सेंटेंस की बात करें, इसको लेके अगर हम एक सेंटेंस की बात करें तो इट इज़ अ रेमेडी अवेलेबल टू अ पर्सन हु इज़ कन्फाइंड विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन. इसी में सब आ जाता है. पर्सन कैन नॉट बी कन्फाइंड विदाउट जस्टिफिकेशन, लीगल जस्टिफिकेशन. इट मीन्स दैट कुछ तो उसके पीछे रीजन होना चाहिए. देन मैंडेमस, द वर्ड मैंडेमस लिटरली मीन्स वी कमांड. इस टाइप का रीड जो है वो ये होता है, इट इज डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट टू डू अ पर्टिकुलर थिंग स्पेसिफाइड देयर इन विच पर्टेन्स टू हिज ऑफिस. काम नहीं हुआ, कुछ इश्यूज है, दीज आर दी directions issued to such person, corporation or inferior court. It can be issued against any public authority. It commands activity. Prohibition, it is a direction to a lower court. It means a writ of prohibition is issued to an inferior court.
if the court is using exercising the jurisdiction beyond its power, तो ये रीट काम आएगा, ये रीट होगा रीट ऑफ प्रोहिबिशन. This is how this is there. This read is available only against judicial or quasi-judicial authorities. It is against judicial or quasi-judicial and is not available against public officer. This is how the writ may be of right and not a matter of discretion if abuse of power is apparent. ये प्रोहिबिशन हो गया. सर्शियरी की बात अगर हम करें तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स ऑल हाई कोर्ट्स टू इशू रिट ऑफ सर्शियरी थ्रू आउट देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इन द सर्कमस्टांसेस द सबऑर्डिनेट जुडिशियल अथॉरिटी एक्ट्स विदाउट और इन एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन इन कॉन्ट्रामेशन ऑफ रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वगैरह. सो ये जो रिट है ये कब रिट होगा, ये विदाउट और इन एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन जब ये exercise इसका होगा. Quo warranto allows inquiry into the legality of the claim which a person declares assets to an office or franchise and to expel him from such position if he is a usurper. It means one who assumes the position illegally. किसी ने अगर पोजीशन illegally ऑक्यूपाई करी होगी तो ये उसे वहाँ से निकालने में काम आएगा. ये क्यू वारंटो ये रीट है. The holder of the office has to explain to the court under what authority he assumes or hold the position. This is with regard to quo warranto petition. Directive principles ये हमने देखा भी. फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2 पार्ट 3 खत्म हो गया. पार्ट 4 अभी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन से हैं, इसके पहले हम ये जानते हैं कि पार्ट 4 है. नंबर 1 इज पार्ट 4. क्वेश्चन इस पे आ सकता है, वो है पार्ट 4 डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. ओके, देन दे आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल. ये भी इंपॉर्टेंट, ये जानना है. बट दे आर एसेंशियल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. ये जरूरी है. एनफोर्सेबल नहीं बट इंपॉर्टेंस उनका कम नहीं होता है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, वेलफेयर स्टेट की अगर हम बात करें तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये पूरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आए हुए हैं. Social order for the promotion of welfare of the people, certain principles of policy like providing adequate means of livelihood to citizens, men and women equally, treating them equally, ensure equal pay for equal work for men and women, then equal justice and free legal aid. This is how equal justice and free legal aid is added by 42nd Amendment in the year 1976. In 1976 many amendments took place. This is also one of the amendments. Equal justice and free legal aid was added by 42nd Amendment in 1976. Then organizations of village panchayat, right to work, to education, to public assistance in certain cases, provision for just and human condition to work and maternity leaves. सभी अगर हम देखेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि वेलफेयर स्टेट को लेके ये इम्पोर्टेंस इनका बहुत ज़्यादा है. लिविंग वेज एट्सेट्रा फॉर वर्कर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रीज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 76. अभी हमने देखा था ये भी ऐड हुआ है. इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड बाय 76 अमेंडमेंट. अगेन दिस इज ऑल्सो देयर फॉर बाय 76 अमेंडमेंट. पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज 97th अमेंडमेंट में 2011 में ऐड हुआ है. ये भी देखना है, इसको याद रखना है. देन यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, organization of agriculture and animal husbandry, protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife, added by 42nd amendment. So 42nd amendment में ये आया है, ठीक है, environment को लेके protection and improvement of environment. then आया है participation of workers in management and then equal justice and free legal aid, added by 1976 amendment.
Again, one more was there, securing opportunities for the healthy development of children, added by 42nd Amendment 1976. Then protection of monuments, separation of judiciary from executives, promotion of international peace and security. ये देखा हमने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखा. Now there is another 4A is there, part 4A. Directive, I'm sorry, 1 minute. That is over. Now it is fundamental duties. Fundamental duties. Part 4A of the Constitution deals with the fundamental duties, and it is inserted by the Constitution 42nd Amendment 1976. Therefore, this amendment is Constitutional Amendment 1976 is known as mini Constitution. इसमें ये भी आया है, fundamental duties were added. Initially 10 were there, another 11th was added subsequently. Now we'll see which are these duties. Article 51A, देखिए 4A याद रखने हैं आपको. फंडामेंटल ड्यूटीज में 4A है, देन है 51A, provides that it shall be the duty of every citizen to abide by the Constitution, okay, to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, to defend the country, to promote harmony and the spirit of common brotherhood, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the natural environment, to develop the scientific temper, to safeguard public property, to strive towards excellence in all spheres. Parent or guardian should provide opportunity for education of the child or ward between the age of 6 and 14. ये भी इनके भी जिम्मेदारी दी है. It was added in the year 2002, this amendment by way of 86th amendment. 21 ये जब ऐड हुआ तब इसकी ये इसमें ज़रूरत दी है. तो हमने अभी देखा है, हमने आज के सेशन में देखा है प्रियम्बल से, वी ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो प्रियम्बल से हमने थोड़ी ये करी है, इंफॉर्मेशन लिए प्रियम्बल के बारे में. देन फंडामेंटल राइट्स, देन फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स की बात अगर हम करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स में 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर, एंड देयर आर ईच राइट इज हैविंग इट्स ओन दिस थिंग. लाइक राइट टू फ्रीडम की हम बात करें तो किस टाइप के फ्रीडम्स है, कितने फ्रीडम्स है उसमें, 6 टाइप के, कौन कौन से फ्रीडम्स है वो भी हमने देखे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से लेके. इसी तरह से आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू इक्वालिटी जिसमें दिया है. वो इक्वालिटी मतलब किस टाइप की इक्वालिटी है, तो हमने इक्वालिटी के जब बात की है तो हमने देखा कि 14 ensures to equality, 15 bars the discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, and Article 16 provides for equality of opportunity. 17 and 18 deal with the provides that titles and untouchabilities are outlawed, means abolished. And then we have moved to freedoms. Freedoms में हमने देखा है किस टाइप के फ्रीडम्स है, हमें ये टाइप के फ्रीडम्स है, बट विथ स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relation with foreign states and other reasons. Then we have seen protection of life and personal liberty, then right to education, very important between the children of the age of 6 to 14 years, that state has to provide them. This is right to education is there. Protection against illegal arrest and detention, ये हमने देखा आर्टिकल 22 में, that what happens that he should be informed of the उसको पता होना चाहिए कि क्या ग्राउंड पे उसको अरेस्ट हुआ. He should be allowed to engage the legal practitioner and he should be produced before the magistrate within 24 hours. ये बात हुई. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमने देखा है कि nobody can be exploited, nobody should be exploited and it is punishable offense. And child labor is also prohibited. Child labor is not allowed. Right to freedom of religion, that we have seen. Right to freedom of religion, that all can have their religion, religious belief to be protected, to be followed and protected. Cultural and educational rights, minorities group, they can have their cultural and educational activities done independently. Right to constitutional remedies, this type of writs they can file, the aggrieved people can file and get the remedy. With this, this is the gist of all whatever we have discussed, and we will continue with our next topics very shortly. Thank you very much. Best of luck.